Today in the media conference with Lal Goel, which is brought to you by V4 News, V4 Stream, Karu News, Malnadu TV India, News Gaon Se, Samvad Sarocar News, Bharat Post News, Organ Donation India Foundation and Gyan. Our endeavor is to enlighten you with the current topic, and today's topic is not only current but very, very relevant. Because as you know that today we are having this thought leadership series. Crisis moments create opportunity. Problems and crises ignite our greatest creativity and thought leadership, as it forces us to focus on things outside the norm. Thought leadership is fundamental in business today and consists primarily of finding and sharing great information in a way that attracts and retains. Thought leadership is when a leader's thoughts are being used by leaders to lead others. Thought leadership is influencing a narrative by understanding what needs to be done. A thought leader can be recognized as an authority in a specific field and whose expertise is sought and often rewarded. That can be an expert, a historical figure, or a wise person with worldly impact. In this series, we will be asking straight questions and we expect a straight answer from our thought leader. And today's our topic is very, very important. And the topic is management lessons from Ramayana. And our thought leader today is Dr. Naveen Gupta. Dr. Naveen Gupta is the director of Hindustan Institute of Management and Computer Studies, HIMCS, Sharda Group of Institutions, Mathura. Dr. Naveen Gupta is a leading behavioral scientist, trainer, management consultant, and therapist. He studied at the IIT Roorkee and has 34 years plus years of academic experience in teaching and research. He has visited a number of countries like USA, China, Hong Kong, Dubai, Oman, Sharjah, Nepal, Macau, Sri Lanka, etc. for training and academic assignments. He has worked as the top academic and administrative leaders, including as director of several business schools and as a director general with Advent Institute of Management, Udaipur, Rajasthan. He is also a founder of Soldiers of Society, SOS, in Agra and Mathura for making difference to the life and livelihood of the auto workers and other poor sections and enhance the experiences and memories of national and international tourists to the city of Taj. Welcome, Dr. Naveen Gupta on our show. Dr. Naveen Gupta, as you know today is our thought leadership series in which I will be asking questions, straight questions to you, and I expect straight answers from you. Some questions might be irritating, some might be because I have to try to take out from you, from your experience and your knowledge, the reality, so that at least our students, our youth, and even the seniors will understand the impact of Ramayana, especially the management lessons from Ramayana. So my first question to you is, management is science. Ramayana is a religious epic. How can we bridge the gap? So, thank you very much, Mr. Lal Goel. So, even I would like to correct. I mean, when we teach management, we say management is not a science, it is an art. And when you talk about the art, management, I mean, because I have been a student of the art, I keep on saying that art is more difficult than the science because there are thumb rules. There are thumb rules. If you know chemistry formula of making water, wherever you go, you will apply and you'll get the same results. But when we talk about the motivation, there are thousands of theories of the motivation. But if you ask, can you motivate my child? Can you motivate my worker? So, if you are not good in art, every individual is a different, unique. The psychology fundamental law, it says every person is a unique. तो वहां जब यूनिक है तो you cannot apply the science.
तो मैनेजमेंट के बारे में जो थोड़ा सा एक हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, yes, of course, there are certain rules, regulations, rules also to be followed. That may be in operational research and in other subjects also. But when you talk about the human resource, तो फिर तो आपको you have to take the reference of the Ramayana, Gita, mythology, ये सीखना ही पड़ेगा इसको सर. But I will just say that Dr. Gupta, management combines features of both science as well as art. Yes. It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. What do you say about that? Sorry, can you repeat your questions again? Management combines features of both science as well as art. Yeah. It is considered as science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. What do you say about that? I don't agree with you, sir, up to certain extent. एक तो I may be very bold enough to say and to accept this fact, पता नहीं क्यों हमें एक कॉम्प्लेक्स रहा है, ऑब्सेशन रहा है कि हम हर चीज को साइंस ही देखना चाहते थे. नथिंग रॉन्ग, इवन साइकोलॉजी आल्सो लोगों ने किसको साइंस, ह्यूमन रिसोर्स, उसको साइंटिफिक उसको में तोड़ना शुरू कर दिया. नथिंग रॉन्ग विद दैट आल्सो, बट व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट इन आर्ट? Because every formula, every theory cannot be applied. For example, हम लेके we are obsessed with the foreign models. Asian 90% अगर business school की हम बात करें, तो if you teach marketing management, तो सब के सब वो Philip Kotler को follow करते हैं. But I am surprised how the Philip Kotler understand the psychosocial variables of the Raja ki Mandi from where I am. So if you apply all the principles, mechanisms, steps of Peter Drucker or anybody else, will not be 100% effective. If it is not effective, how we can call it a science? तो वो आपको वहाँ का लोगों का लोकल एटीट्यूड, लोकल बिहेवियर को, कल्चर को नहीं समझ पाएंगे. एंड व्हेन यू इंट्रोड्यूस द कल्चर, व्हेन यू टॉक अबाउट द बिहेवियर, इट इज एन आर्ट. यस, ऑफ कोर्स, उसको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को काफी लोगों ने मेहनत किया, स्कॉलर्स ने, उन्होंने मेहनत किया और उसको दे ट्राई टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड. But when you talk about structure, तो वो साइंस था वर्ड आ ही जाता है. तो वहां तक तो I am ready to accept, but there are certain principles, like if you talk about the theories, motivation theories, हर्सबर्ग थ्योरी की आप बात करें, मैकग्रीगर की बात करें, आप मास्लो नीड हायरार्की की बात करें, तो will you call it a science? ठीक है, एक बना के स्ट्रक्चर दे दिया, एक फार्मूला दे दिया, but it is not relevant 100%. Now, when we are talking of Ramayana, do you consider Ramayana as a true event which has taken place, or if just a book written by one novelist? देखिए sir, I don't want to be biased, and I'm not an authority also. Now it is a very, very controversial और आस्था की बातें हैं, as you know, है ना? Elections are around the corner, so I can be in trouble if you ask such type of questions. But nevertheless, how do I see as a Ramayana? I don't know. ये तो एक बहुत ही बड़ा debatable चीजें हैं, और still debates is going on, थे या नहीं थी, क्या थे. But I can only understand it is a great book of the management. We can learn, because I'm a scholar of the management, I'm a scholar of the behavioral science, तो बहुत कुछ इससे सीखने को है. Not only Ramayana, from Gita, from Quran, from Bible. अब ये थे या नहीं थे, ये तो आप भी देख रहे हैं आजकल खूब इस पे उधम मचा हुआ है ना. I'm from the birthplace of the Lord Krishna, but still if you ask me, have I seen him?
अभी आस्था की चीजें हैं सर, बट फॉर मी I really try to understand the management day by day. I try to understand the life skills. जब हम बात करते हैं, recently a few years back, I was in US for a talk. More than जो 50 years plus के लोग थे, प्रोफेसर लाइक सिद्दीकी, मैं उनका नाम मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन वो होता है कि इंडियन को देख के बड़े खुश होते हैं, तो मेरे को बड़ा मिले। तो 50 साल से जितने भी ऊपर के प्रोफेसर थे, वो मेरे से मिल मिल के बस यही बात करते थे, कहना माया मिली ना राम, माया मिली ना राम। तो वो इतना टाइम नहीं था, आई कुड नॉट एक्सप्लोर व्हाट दे वांट टू से, बट आई कुड ओनली अंडरस्टैंड कि दे आर रिग्रेटिंग कि माया के चक्कर में आई, ना तो माया मिला ना राम मिला। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, स्टिल आई एम ट्राइंग टू सर्च आउट कि व्हाट दे वांट टू से। न माया तो मिला होगा क्योंकि दे आर इन यूएसए, सो माया मनी तो। नाउ इफ रामायण, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, माया का भी तो वही है ना कि इफ यू टेक ए रेफरेंस फ्रॉम द रामायण आल्सो, कि वो हिरन गोल्डन डियर के पीछे भाग रहे, कितना माया, कहा तो नो वन इज सेटिस्फाइड। वहां जाने के बाद आप देखते हैं कि भाई माया तो मेरे पास कम है। Can you find out few people who can say कि I have got a sufficient money, wealth? now you have mentioned, Dr. Gupta, you have mentioned about that golden deer. And nowadays we know that the problem here is that we all are running after the money, the wealth. So Ramayana, they also run behind the Maya, behind the wealth. उसमें सर, इसमें बस यही तो उसको थोड़ा सीखने का है कि रामायण, इफ आई कंसीडर, वो शायद जीवन में कुछ रूल्स, कुछ साइंटिफिक रूल्स भी आप कह सकते हैं, हियर यू कैन से टू टीच द पीपल, दैट मे बी वन ऑफ द इंटेंशन टू राइट, हाउ टू गाइड द होल यूनिवर्स, सोसाइटी को कैसे गवर्न करे। तो जो गोल्डन डियर का एग्जाम्पल है, जब हम कहते हैं, कहने कि भाई माया के पीछे कितना भागना है, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड कैनॉट गिव यू अ सेटिस्फैक्शन। तो वो एक सिंबॉलिक एक हो सकता है कि सीता आस्क बिकॉज लेडीज आर टू मच, आई मीन विद ड्यू रिगार्ड्स, एंड वो, एंड वन थिंग आई कुड अंडरस्टैंड, कहने का लेडीज जब हैं तो हैं, यू कैन नॉट, you have to follow, so they are the true motivator. तो जब वो भागा उसके पीछे, तो he crossed the limit also. तो माया के पीछे दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, अभी रिसेंटली ब्रायन डाइसन जो कोको कोला के हेड हुए हैं, उनकी बड़ी अच्छी स्पीच है, दैट हैज बीन वेरी वेरी पॉपुलर। तो उसने कहा लाइफ इज व्हाट, इट इज जस्ट लाइक 5 balls, वो जगलर की तरह से है ना, 5 balls के बीच में यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो नंबर 1 ball ऑफ योर लाइफ, और यू कैन से योर मार्वल, जो बचपन में हम खेलते थे, मार्वल रेस, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करते हैं, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस को लेके चल रही है, तो वो उससे बहुत अच्छे समझ में आते हैं कि लाइफ इज जस्ट लाइक ए मार्वल रेस। You have to be first, number 1 भी आना है, but you have to be careful that your ball or a lemon should not drop. Marvel भी कह सकते हैं इसको, but you need to define your own marvel. वो आपका lemon race, वो lemon आपका क्या है? Lemon of Mr. Goel cannot be my lemon. If you are not able to make a difference, then you will be in trouble, you will be under stress. तो वही बताया कि मेटलिस्टिक वैल्यूज के पीछे कितना गोल्डन डियर जो था, वो एक था, एक सिंबल था, कितना भागेंगे, और भागेंगे तो then you will be in trouble. Do you think then the Ram failed to manage his own wife and gone for the greed of the golden deer? I cannot comment sir like that, है ना, because बहुत बड़ा एक है, तो हर आदमी में we have all strength and weaknesses, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम लोगों से भी कहीं ना कहीं कुछ भूल हो जाती है, चीजों को समझने में, बाद में समझ में आती है गलती के बाद, तो वो वही समझ में आया शायद, लेकिन उससे सीखा, he did not regret, he was not in depression.
Ram was not in depression. But the entire Ramayana is based because of that golden deer. And if the correct decision would have been taken by Ram at that time, this trouble would have not started, and so many people would have not died. I don't know. कह सकते हैं आप इस चीज को. You can say. Don't you think it's a failure of the management? Failure of the management तो नहीं करेंगे, because आगे उसने बहुत जबरदस्त उसके माध्यम से, क्योंकि लाइफ में अगर फेलियर नहीं होंगे तो हाउ वी विल लर्न. दूसरी तरफ तो आप देखो ना, एक ही मिनट में तो वो सारा का सारा मेटलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के चल दिया था. फिर दोबारा अगेन हमें बार बार ये चीजें सामने आएंगी. जब आएंगी ये हमें सीखना होगा कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस. Okay. Now, if Ramayana gives valuable management lessons, why top MBA colleges in Western countries do not call it textbook of business? Perhaps it is our responsibility also. We have to take up this responsibility. We have to teach. I'm thankful that you have organized such a good show. It will give a lot of messages. Don't see it as a religious book. Take it as a management book, irrespective of any religion or caste. Just इसको पढ़िएगा. हिंदू होके मत पढ़िएगा इसको, मुस्लिम होके मत पढ़िएगा इसको. आप एक लर्नर, स्कॉलर बन के आप इसको पढ़ेंगे. Of course, it will give lot of messages. Otherwise, वो क्या हो गया कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी हमारी बचपन से बन गई है कि राम 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 है. तो हिंदुओं को तो एवरी दे आर सो बायस्ड, दे विल लव ईच एंड एवरीथिंग. कई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे. यू आर आई एम हैप्पी यू आर आस्किंग questions like this. Otherwise, the people know, don't ask the questions about Ramayana or Gita. Whatever is written, it is written. We need to respect. And if other than Hindus, if they will read out, they will have a lot of questions in their mind. ये क्यों था जी, क्यों छोड़ दिया जी, कहाँ चले गए जी, क्या है, एक पत्ते से कैसे उन्होंने कर दिया होगा, ये तो सब बकवास है. नहीं है, नहीं, उसको आप मैनेजमेंट बुक की तरह से. Don't you think that our government, not this government, that from the very beginning failed to promote Ramayana and used as a soft power, so that we have seen how the other countries have promoted their books, whether it's Bible or Quran or whichever books in other countries, with giving lessons, with coming out. But Ramayana, we accept the one serial which came on the TV. We are it's like a taboo to talk about Ramayana, as you mentioned right now. No one asks the question whatsoever is there. But when the Ramayana is such a, with having so many good qualities and lessons to the management, why not we must promote it and make it a textbook, even in India, at least some chapters which are relevant for the management, and then promote it in other countries. What do you say about it? Yeah, I do agree. We should, but who will take the leadership challenge? Because again, agar India ki conditions is something different, social and political condition. आपने यू मेंशन कि पहले भी, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं, if they will talk, then the other religion may feel offended. तो उनको एक अपीसमेंट के लिए, है ना, which was not correct, तो वो कहने no, don't talk. No, my point is like soft power. Yesterday I did a program on the Indian cuisine, the lever for the soft power, in which we want, like in Indian, food is not popular but very expensive. Government is not giving any incentive to those who wants to set up restaurants abroad, while other countries like China, Japan, they are giving them the subsidy, they are giving soft loans, etc. Similarly, as you might be knowing, that China is having 7 universities in India promoting their own culture here,
Why India is lacking like Ramayana? We must have some where the government should take initiative, try to organize programs abroad where the scholars like you and others will be invited to give lectures on Ramayana, the management lessons there, so that at least the Western world will come to know what is the advantages and what are the real lessons of the management from Ramayana. What do you say about that? देखिए ये सब चीजें if I'll talk, it will be a political comment, right? Nevertheless, since you asked this question, so I would love to answer. And again, debate जो आपका topic है will be maybe diverted. So if you No, I talk, just want a very small answer in that. so we can have a discussion at length. Hmm. वो तो हमारा since कब से चला है कि हमारे ऊपर जो एक ब्रिटिश रूल रहा है, तो वो इतना हमारी सेल्फ एस्टीम को डाउन किया उस पीरियड में. अब उन्होंने किया या हम हुए, फिर सीधा सीधा बताया कि व्हाट आई एम बिकॉज है ना आई डिजर्व, राइट? Okay. अब वो हर चीज को मतलब इस तरीके के इफ यू वांट टू बी स्मार्ट है ना, तो स्मार्ट मींस व्हाट, लाइक लाल साहब, देयर मस्ट बी अ गुड टाई, गुड कैप, गुड सूट एंड बूट, है ना? Okay. Now, if you speak good English, then you are intelligent. If you talk in Sanskrit, अभी recent government that may be biased, अब उसको कहा जाता है कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बट जो आप बात कर रहे हैं लाल साहब, अभी देवप्रयाग में उत्तराखंड में they have started a Sanskrit university. I'm glad to see. जो संस्कृत का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, योगा का ज्ञान, जो एक कहते थे सोने की चिड़िया था, वो दोबारा बन सकता है, प्रोवाइडेड उसमें कहीं हमारा पॉलिटिकल एंगल ना मिक्सअप हो जाए. तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और कंट्रीज में चाइना है जिसका आपने एग्जाम्पल दिया, वहां इस तरीके की चीज नहीं है. यहाँ तो सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. वी हैव टू बी केयरफुल. okay. Now I am coming to the Ramayana. Expert says that Sundarkand is richest in management lessons. Why? सुंदरकांड का तो बहुत ही अच्छा, मतलब द होल रामायण ना, खैर आई एम इम्प्रेस, लेकिन सुंदरकांड की आप बात करेंगे, इफ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ दैट स्पीक्स अबाउट द हनुमान जी. हनुमान जी इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? पावर. इज अ सिंबल ऑफ हम्बलनेस, पावर विद हम्बलनेस. अब उन्होंने, हमारा क्या है कि पावर, नथिंग रॉन्ग विद द पावर, लेकिन हमारा व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर. जब सुंदरकांड में हनुमान चालीसा का जिक्र आता है, तो हनुमान जी के बारे में जब बात करते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मतलब पावर का मतलब if somebody is powerful with me. When we talk about the bureaucracy, when we see the police scope, he has got a power, legitimate power. But power का वो क्या कि नहीं मिसयूज हमने शुरू कर दिया. तो इसलिए इतना जबरदस्त उसके अंदर है कि भाई अगर if I need a quality of a good manager or a good subordinate, तो वो कैसे? हनुमान जी, पावरफुल, इतने विनम्र आदमी, है ना? If you know, and he was, जैसे कि इकिगाई is a Japanese concept. It has been very very popular. दो हमारे यहाँ भी इस तरह की खूब बातें हुई, स्वाध्याय की बातें हुई, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हो पाया. ये क्यों नहीं हो पाया? ये एक सब्जेक्ट है जो आपने रेज किया है, एंड परहैप्स वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं, बिकॉज आई डू बिलीव इन वन फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ लॉ. जब भी हम किसी पे उंगली उठाते हैं, तो आई डोंट वांट टू फिंगर कि ये अंग्रेजों की साजिश रही है या गवर्नमेंट की साजिश रही है. नो, नथिंग. मुगलों की साजिश रही है? नो. Somewhere, somehow, three fingers are towards me. So 75% I'm responsible for each and everything. What is your responsibility? 25% maybe someone else. ठीक है, ब्रिटिश रूल रहा है, मुगल आ गए हैं, तो गवर्नमेंट ने भी उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया है. एंड देन उसके बाद हम कहते हैं कि ऊपर अंगूठा जब उठाते हैं, कहने का नहीं, दैट इज माय स्ट्रेस मैनेजमेंट, शायद ऊपर वाले को ही मंजूर था, दैट इज कोपिंग स्टेटमेंट. बट 75% तो मुझे अपने आप को देखना ही होगा
तो उसमें जो सुंदरकांड की आपने बात कहा है, तो वो यही है कि पावर का तो कितना रोल है ना? तो कितने हम्बल आदमी थे। जब कहते हैं कि व्हेन तुलसीदास रोट ए रामायण, तो उनको पता चला कि हनुमान जी हैज आल्सो रिटन, वो बहुत रोए और कहे, देन हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी में वो लिखा हुआ था, केले के पत्ते पे लिखा हुआ था। तो उन्होंने जैसी उसकी रामायण पढ़ी तुलसी की, तो उसने वो अपनी रामायण को खा गए। कहने का ये क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको हनुमान जी ने। तो ने कहा व्हाट इज दिस, नहीं 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 नहीं, मैंने रामायण जिस पर्पज से लिखी थी, मैंने रामायण लिखी थी हनुमान को पाने के लिए, एंड आई गॉट द रामचंद्र जी, राम को पाने के लिए, राम को पाने के लिए, तो आई गॉट द रामचंद्र जी, तो नाउ देयर इज नो यूज। एंड तुलसी आपने जो लिखी है रामायण, इसको प्रमोट करने के लिए, लाइफ के एक डायरेक्शन देने के लिए लिखा है, तो योर रामायण इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक। मेरी रामायण खत्म होगी। तो पर्पस ऑफ द लाइफ जब हमारा नहीं मिल पाता है, तो यही तो एक प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी, बिकॉज एज यू नो, आई एम ए मैन ऑफ बिहेवियरल साइंस, अभी इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना साइकोटिक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिकॉज परहैप्स कहीं ना कहीं मिसिंग है पर्पस ऑफ द लाइफ। पर्पस क्या है आपका? वही बस दूसरे का लेमन, आई वॉन्ट टू फॉलो, आई वॉन्ट टू परस्यू। तो यू नीड टू एक्सप्लोर विद इन योर सेल्फ। एंड देन हनुमान से कई बार वो, जब हम जोहारी विंडो पढ़ाते हैं, जो एंड हैरी का कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, बिहेवियरल साइंटिस्ट, वंडरफुल कंसेप्ट। I also used to have a workshop of 2 days training program on Johari window. Nothing wrong with that. But always when I talk, तो वो बार बार रिमाइंड कराता है हनुमान जी के बारे में। If you allow, I can discuss about the Johari window also, or I don't know the kind of audience we have. right, but when you were talking about Hanuman, let's now, my question to you is, when Hanuman successfully discovered Sita's whereabouts, he on his own choice set aflame the city of Lanka. This decision of Hanuman disgruntled Ram. This led to Hanuman not taking further decision for his own. Do you agree with this? Again, no comment. Because why I'm saying this is a thing, something which is concerned with the management. After all, if a person from in a corporate sent for some particular work, and if he takes some decision which is not as per the company policy, what Hanumanji has done, it was something which is not in his purview. He was not supposed to do it, but he burned the Lanka. So question is, when we are talking about that, how the management people should follow the lessons they should learn, when they will read this, what lesson they will take from this? देखिए लाल सर, इसमें क्या है कि रेफरेंस एंड कंटेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. One thing was good, if you talk positive side, that he was empowered. Hanumanji was empowered to take the decision. And that was not a time of video conferencing, WhatsApp पे बात कर ले. Technology was not so, मतलब communication की technology, तो there were good technology available. तो उसने कहा कि यार ये चीज है, now let me do. तो वो उसका क्या कंटेस्ट रहा, क्या रेफरेंस रहा, सर आई एम नॉट अथॉरिटी और आई विल टेक लॉट ऑफ रिस्क अननेसेसरली to talk about all these things. Okay, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में आता हूं. Consider this scenario in war where Mahiravan abducted Ram and Lakshman with intent to drag them to Patal Lok. It was Hanuman who had the right intellect and physical powers to rescue them. Eventually, Hanuman succeeded in rescuing Ram and Lakshman. What Ram did here is something that every leader should be learning, creating more leaders within the organizations to succeed in achieving a common goal. Do you agree? I agree. The purpose of Ram का जो leadership था, and where what is the objective of the management education also. Management education का भी purpose है to create more leaders.
फंडामेंटल एक पर्पस यही होता है मैंने MBA प्रोग्राम का, क्रिएट मोर एंड मोर लीडर्स। तो रामचंद्र जी ने लीडर्स प्रोड्यूस किए। जो आपने सवाल पूछा है, तो ही वाज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस आल्सो। अदरवाइज आप यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन कि पूरा का पूरा पहाड़ क्यों लेके आ गया भाई। Now that is my next question. He bought the entire mounted. Now question is, if a corporate person has been sent to procure something and he got something which is not, mainly the things are not useful, it will be a loss to the company. Then? But there was no other option because he was used. What was more important for him? It means he was not briefed properly about the product. He has not taken the proper briefing at that time. What product he is going to bring. He has not applied his mind initially. The lesson to the management should be that whenever you are going out to procure something, you should be knowing each and everything about the product what you are going to bring. देखिए उस टाइम का जो सिचुएशन था, देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट भी एक चीज होता है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में आप भूल जाते हैं कई बार कुछ चीजें बताना। तो उस टाइम एक सबऑर्डिनेट का ही काम होता है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। वरना आप इमेजिन करो कि वो वापस आके पूछते करने का, क्या साहब आपने तो मेरे को प्रॉपर एड्रेस भी नहीं दिया और कोई फैक्स भी नहीं कर सकता, मैं कोई SMS भी नहीं भेज सकता, क्या करूं। इसी बीच में तो वो तो निकल जाते बेचारे लक्ष्मण जी। So it was his intellect, wisdom, and he was empowered कि यार आपको तो टास्क बताया मैंने, I don't want to listen stories, I just want कि now लक्ष्मण should be saved और ये हमारे पास टाइम है। इसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट, यू कैन कॉल इट अ रिएक्शनरी मैनेजमेंट दैट टाइम। Crisis management plus the timely action which Hanumanji has taken at that time. Yes. Now, when we talk about Hanuman, there is one more character, that is Sugriv in Ramayana. Now, if there was anyone in the Ramayana who was having best of the managerial characteristics, then it was Sugriv. Your comments? Undoubtedly, Sugriv was, a good talent hunt of Ramchandra ji. He could find out that he is a better manager he can do. So I can only say Sugriv, balanced, cool and calm, he understands each and everything. तो राम जी को उस पर पूरा ट्रस्ट था। देन उसने एक थोड़ा सा जो पिग्मालियन कंसेप्ट उसको यूज किया रामचंद्र जी ने, दैट वाज अ वंडरफुल। यू कैन डू, यू कैन रूल, यू कैन एडवाइस। तो सुग्रीव, या ऑफ कोर्स आई कैन से इज अ गुड मैनेजर। But Sugriv also used Ramchandji because he was having fight with his brother and he wanted that Ramchandji should help him. So he has taken the help from Ramchandji and afterwards he extended his help to him. So it means that Sugriv was also one of the character which is also a role model for the management thing. अब उसने थोड़ा सा तो सब स्ट्रैटेजी, he was a man of strategy, undoubtedly he was a manager. आपने बात जो किया ना कि लीडर नहीं था, वो मैनेजर था। Manager, yes, he was a manager. रामचंद्र जी was a leader. True. जब मैनेज करने के लिए था तो उसने कहा कि भाई जिससे भी मुझे पावर मिल सकती है, जिससे भी अलाइनमेंट करके हेल्प मिल सकता है, तो नथिंग रॉन्ग, बिकॉज मेरे पास तो एक टारगेट है, उसको मुझे करना है। Now management has 5 functions that involve planning, organizing, commanding, controlling, and coordinating. Do you think Ramayana has all this? If yes, can you explain? I think if we go one by one, है ना? Yeah. अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से, तो मैं I will start from the रामचंद्र जी। कैसे, और इफ यू टॉक अबाउट, आपने जैसे वर्ड यूज किया पोल का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, वो सब कैसे कैसे किया।
तो आई डोंट नो कैसे लिया जाए, मैं बट आई विल टॉक अबाउट वन बाय वन करेक्टर की हम बात करेंगे, तो दैट विल बी परहैप्स फर्स्ट नंबर वन। तो हम बात करें राम की, जो वाज द मेन कैरेक्टर, राम एंड रावण, उसकी अगर हम बात करें तो ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फॉर मी। अगर मेरे हाथ में हो तो बेस्ट मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी अवॉर्डेड टू श्री रामचंद्र जी। हाउ? तो उन्होंने सबसे पहले है कि प्लानिंग। देखिए कितना बड़ा, अगर हम ईक्यू को भी इसमें मैं मिक्स करना चाहूंगा, जो डेनियल गोलमैन की थ्योरी है, टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर करियर एंड लाइफ, the role of IQ is only 20% and rest emotional quotient 80%. जो EQ की हम बात करें तो बेस्ट EQ lessons can be learned from the character of रामचंद्र जी। How? एक तो देखिए कितना जबरदस्त पेशेंस, धैर्य, सहज हो जाना। कितने लोग हम लोग कर सकते हैं एज ए मैनेजर? नहीं हो सकते कि एक मिनट में तो आपको यू वर गिवन ऑल काइंड ऑफ पावर, राज्य अभिषेक होना आपका। द सेकेंड मोमेंट यू हैव बीन आस्क्ड कि गुरु कपड़े उतारो और निकल जाओ जंगल के लिए। ही डिड नॉट क्राई, ही डिड नॉट ब्लेम, बिकॉज हिज फादर वाज ए रोल मॉडल फॉर हिम। और उस टाइम का टाइम था, आज की तो बात क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, व्हाई शुड आई गो? तो पेरेंटिंग वाज ऑफ डिफरेंट नेचर, फादर इज अ फादर, सुप्रीम अथॉरिटी। तो एक मिनट में उसने चल दिया और ही डिडंट आस्क एनीवन टू बी चल, टू बी चल। बट यस, वो एक फैमिली कल्चर था, संस्कार थे। कहने का नहीं, राम लक्ष्मण वाज अ गुड ब्रदर, अ वेरी लॉयल सबऑर्डिनेट। मैं भी चलूंगा, सीता दिस इज माय धर्म, वो भी चलेगी उसके साथ। ठीक है, तो कितना जबरदस्त पेशेंस। उसके बाद देखे ऑर्गेनाइजिंग, when the incident happened with him, as we all know and we have discussed already, कि भाई जा रहे थे, जंगल में जाते। दूसरा एक चीज और को सीखने को है, मे बी जो आपने क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो सकता हूं, बट व्हाट आई वांट टू स्पीक दैट विल कवर एथिक। कि देखिए उसने करा क्या है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट कि when he was asked कि जंगल में जाए। देखिए when we talk about leadership, I would like to share a very good story. वो मेरे को बहुत समझ में आता है, वो कहीं मेंशन नहीं किया, कहीं बुक में भी नहीं है, कि there was एक किंग ने अपने बच्चे को भेजा। तो ये पंचतंत्र की कहानियों में था कि बच्चे को भेजा कि भाई मेरे बच्चे को अभी इसको राज्य अभिषेक कराना है, यू टीच हिम। उस ऋषि मुनि ने क्या करा, अपने उनको जंगल में भेज दिया, कहने का आपको 1 साल तक जंगल में रह के आना है। When they were back, कहने का आपको जानवर की आवाज सुननी है, पशु पक्षियों के बारे में जानना है ना? तो उसने आके नाउ कहने का जी हमने बहुत कुछ देखा, वहां बहुत शेर देखे, तरह तरह के डिफरेंट लॉयंस देखे, तरह तरह के एनिमल्स देखे, तरह तरह की वनस्पति देखी। स्टिल द ऋषि मुनि ने कहा कि नो, स्टिल योर एजुकेशन इज नॉट कंप्लीटेड, यू गो बैक अगेन फॉर 1 more year। तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट हुए, कहना यार ये तो कहाँ भेज दिया, मैं पिताजी ने कहा पढ़ने भेज दिया, ये तो सब बकवास कर रहा है। दे वर आस्क्ड अगेन। जब वो दोबारा लौट के आए, कहने का अभी आप बताओ, कहना हाँ सर, अभी तो वी कुड सी फूल कैसे जब खिलता है, कमल जैसे खुलता है, हमने भोरे की आवाज भी सुनी, हमने चिड़ियाओं की डिफरेंट चिड़ियाओं की आवाज भी सुनी। तो यू आर ए गुड लीडर व्हेन यू कैन हियर द अनहर्ड आल्सो। तो दैट इज द लीडर। एक बेस्ट लीडर वो ही है who can hear the unheard also. So perhaps that may be one of the objective. If you want to be
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम राज की बात करनी है, तो you should know each and every one of your kingdom, including animals, वनस्पति. So that was also one of the objective जब उसको भेजा गया. पता नहीं ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक समझता हूँ मैनेजमेंट के नाते कि अगर लीडरशिप की बात करेंगे, आपको leaders are not, they only knows their own chamchas, sycophants, those are around. तो no, you should know वो कौन सा है, वही अकबर ने यूज किया. So I don't want to talk about Akbar right now, but we can talk management lessons, है ना. तो उसने पूरा का पूरा आप देखें. फिर रेस्पेक्ट फॉर ऑल, जो हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, वो IBM मोटरोला का एग्जांपल देते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, कहने के एवरी एंड ईच वन इज इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी ए पियोन. If you are open for learning, you can learn from each and every one. तो वो जो उनका चीजें थी कि रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, केवट, सबरी, सबसे उन्होंने संभाव की बात की. फिर आप कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, मैनेजमेंट में जो हम पढ़ाते हैं. लुक एट द रामायणा. व्हाई आई कॉल हिम ए बेस्ट HR मैनेजर. ही डिडंट क्राई. क्या यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. An animal like बंदर, when you talk, किसी भी एनिमल की बात करें, है ना, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिससे औषधि ना बना सके, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कुछ क्वालिटी ना हो. तो बंदर यू लुक एट द मंकी. सो मतलब पूरा शरारत, डिस्ट्रैक्शन, जो डर गया उसको डराएगा, बच्चे को डराएगा, आपके ऊपर टीवी एरियल्स वगैरह सब, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सब खराब कर देगा, खाना कम खाएगा, खराब ज्यादा करेगा, है ना. ही कैन डू एनी डैमेज. तो उनके पास देयर वाज नो अदर रिसोर्सेज अवेलेबल. उसने कहा इस बंदर को ही मेरे को रिसोर्स में कन्वर्ट करना है. वो रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वंडरफुल इफ यू कैन लर्न व्हाट वी नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना. व्हाई योर टास्क हैज बीन नॉट कंप्लीटेड, व्हाट कैन आई डू, बिकॉज द काइंड ऑफ ह्यूमन पावर आई हैव, दे आर ऑल यूजलेस, बकवास. तो सारा का सारा हम कह के अपना काम खत्म कर लेते हैं. तो राम से सीखना है कहने का रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है. डिड नॉट क्राई. कभी एंगर मैनेजमेंट, लुक एट दी, नथिंग रॉन्ग, इमोशंस है, इमोशंस की बात करें एंगर को, लेकिन व्हेन टू डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले, दिस हैज टू बी लर्न. And how much to display? And how much to display? How much to display? When to display? Which Ramchandji has used when they were crossing the sea. See. And at I think that is the only moment when Ramchandji became angry. Right. And it was just to show, to get the work done without doing any harm. I think that is a very big lesson which Ramchandji has given, that he prayed, he begged from the sea, you just give us the path, but he was not ready to give. And when he said, okay, then I am going to dry you, so immediately he came. So my point is, like this thing, you have to show your anger when you require it, but it has to be in a very limited way, that your work should be done. वही तो ना, उसने कहा 3 दिन से पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे, पूजा कर रहे. उसने कहा नहीं यार, तो कहने का आई हैव यार, ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिटी इज नॉट माय वीकनेस. दिस हैज टू बी अंडरस्टैंड. एंड द बेस्ट ट्रेट व्हिच हैज बीन, जो उसका ट्रेट की बात करें, ट्रेट ऑफ अ गुड लीडर, व्हाट वी टीच इन द मैनेजमेंट आल्सो, कहते हैं कि जब पीटर डकर यूज्ड टू से, कहने का हु कैन बी द बेस्ट सीईओ. There was a conference meeting, कहने किसी ने कहा, a man of human resource, a man of operational research, a man of finance.
But Peter Drucker lastly said, no, only a man of humility can be the best CEO. तो पीटर डगर जब वो बात करता है तो हमें बहुत अच्छे समझ में आती है. But when we see the character of the रामचंद्र जी या गांधी जी, तो हम कहते हैं मजबूरी का नाम गांधी. तो वो जो ह्यूमिलिटी थी, दैट वाज नॉट हिज वीकनेस. तो रामचंद्र ने कहा, नो, आई हैव पावर आल्सो इफ यू वांट टू सी, बट दैट इज नॉट माय पर्पस. तो तब उन्होंने थोड़ा सा तीर जैसे निकाला, उसको समझ में आ गया, कहने लगा, बॉस कहाँ पंगा ले रहे हो आप. तो ये सब चीजें जो है, इवन व्हेन यू आर ए डायरेक्टर ऑफ ए कॉलेज, you have power, legitimate power. IAS हैं, मंत्री हैं, you have all the power with you. But when, how, purpose क्या है, ये अगर हम नहीं सीख पाए तो आप जो है अधर्म करेंगे, आप नाश करेंगे, and ultimately it will affect you also and your family also. The role of power, you can see अभी recently जो example आशीष मिश्रा का मैं कहना चाहूंगा, जो शाहजहानपुर में हुआ, जो किसानों के ऊपर, वो क्या हमने इंटॉक्सिकेशन, कितना फैमिली में पावर का डिस्प्ले. तो वही रावण को वाला चीज, नो एरोगेंसी, एवरीथिंग वी ऑल हैव, वी कैन डू एनीथिंग. फिर कहीं ना कहीं तो देन वी हैव टू पे द रिजल्ट. व्हाई रामचंद्र जी स्टिल, मतलब पूजा करते हैं, राम राज्य की हम बात करते हैं. राम राज्य का मतलब क्या है समझने ना, कहने fearless, all is equal, democratic, participative management. See, now again, when we are talking of Ram, there are few shortcomings also of Ram, which was highlighted. One was that he was a very, जैसे कहते हैं कान के कच्चे थे. जैसे कि किसी ने कह दिया और उन्होंने सीता जी को बाहर निकाल दिया. तो क्या मैनेजमेंट में सॉरी, मैं समझ रहा था कि आप बात जरूर लाएंगे इसको. नहीं, लाने वाली बात ही है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, मैं तो नहीं पढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट्स की डेफिनेटली क्वेरी आएगी, एंड स्पेशली द गर्ल्स आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि everything is fine, he was a very good manager, but why he has taken that decision that he listening to somebody without investigating the matter properly, thoroughly, he has taken a quick decision. Don't you think it was a failureness of his management? नहीं, फेलियर को आप उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखेगा. वो जो रामायण जो लिखी गई है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये हमें समझने के लिए लिखी गई है. आप देखिएगा, ये बात जरूर है, तो ऑर्गेनाइजेशन में these things are also very very common. जो उन्होंने वर्ड को यूज किया, आपने कहा क्रेडुलस, है ना, he was not credulous at all. लेकिन वहां पर्पस, वो के उस रेफरेंस को समझना, उस कंटेस्ट को समझना, ये बहुत ही जरूरी है. क्या पर्पस था? बिकॉज ही वॉज एक हस्बैंड थे, लेकिन ही वॉज ए युग पुरुष आल्सो. वो एक राजा भी थे. अभी आप देखिएगा ना, जो अभी काम हुआ है, बिल क्लिंटन का रेफरेंस अगर हम आप इसको देखें, मॉडर्न इसकी बात करें, बिल क्लिंटन वॉज ए वेरी गुड प्रेसिडेंट, बट व्हाई he was controversial? Because of one incident. जबकि वहां पर सेक्सुअल नॉर्म्स आर वेरी, मतलब थोड़ा सा लिबरल है कंपैरिजन ऑफ आवर कंट्री, बट स्टिल ही वाज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट. तो उन्होंने लोगों को भी दिखाना था. ये गलती पता नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, आई कैन बी इन ट्रबल, लेकिन ये मान सकते हैं कि ये धोबी कम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, धोबी कम्युनिकेशन, इट इज हैज नो कंसर्न विद द कास्ट और ट्रेड. Low communication is very very common in every organization also. We need to be careful. Not only धोबी communication, मंत्र ने आके जो उसको भड़काया केकई, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में है. We need to be careful.
So the lesson which what we have to learn is a positive as well as the shortcomings of the Ramayana. We have to see to it what are the shortcomings. We should not do this thing. Now, when we have started talking about Sita ji, don't you think Sita ji was having more powers than even Ramchandra ji? And as far as the managerial power or otherwise, I will tell you how. Sita ji was born as per the Ramayana unnaturally. She came from the earth and she died. She went in the earth. If you remember that Shivji's Dhanush, which was the main thing to somebody has to lift about that for the Swayamvar, for the marriage of Sita. And everybody tried, even Rama tried, they could not lift it. Even Ramchandra ji lifted, but with both the hands. While if you read the Ramayana, it is mentioned that whenever Sita ji used to clean that particular room, she used to take that dhanush with her, the smallest finger. So don't you think that in Ramayana the power of Sita ji was not utilized in a proper way, which was supposed to be utilized, like what we have seen in a corporate? We see that if anybody is having potential, we must utilize that power of that person. What do you say about this, Dr. Gupta? I think you are right here. But still I'm not the authority to comment what was. लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि भी देखिए, I'm not authority to comment, है ना? ये इतने सदियों से चली आ रही है रामायणा, ये सब चीजें, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सीखने को है. तो I see only the positive side, है ना? बाकी कई सवाल तो ये आते हैं इस तरीके के कि why, because society of that time was like that कि शायद उनको मेन रोल नहीं दिया जाता था लेडीज को. ओनली द हीरोज वर. अभी चीजें बदल गई हैं. अभी तो कहते हैं कि नहीं, आप आ जाओ, आप करके दिखाओ ये सब चीजें, है ना? तो लीडरशिप रोल उनको नहीं दिया जाता है. बट स्टिल अभी आप देखिएगा कहीं भी हम करते हैं अपने जिसमें सीताराम, तो सीता को पहले पूजा जाता है. डॉक्टर गुप्ता, यू आर सेइंग बट सुंदरकांड एक चौपाई है जो बहुत कोट होती है. ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी. Your comments, please. For manage, I'm talking from management side. Are we going to use this for the management college, that those who are illiterate, those who are from the low caste, or those who are animals, and those who are women, should they should be they are authorized for the ताड़ना के अधिकारी. Again, my comments are the same. देखिए वही रेफरेंस क्या था, क्या कंटेस्ट थे, हर बात को एक ही चीज को लेके कहीं ना कहीं, और there are so many good things. See, Dr. Gupta, why I'm saying, when you are going to teach this, अगर literally अगर हम चीजों को लें इसको, तो that was really objectionable, है ना? Literally रहे, लेकिन still I need to do a lot of research. ये बातें कही क्यों गई थी? नहीं, कही तो थी समुद्र देवता ने कही थी जब वो सुखाने की बात कर रहे थे. Then he said, but my question is, when we are talking that we are going to bring the Ramayana or any of our religious books for the management studies, definitely the questions will be asked. And this is something which, as you know, being a director of a very reputed management institute, the girls are there and they will definitely ask you when you are teaching why, because two incidents in Ramayana. One was when Sita was sent, and the other was when this thing was mentioned in that. So don't you think that we have to be selective when we are going to teach the lessons of Ramayana? Only those where we have to teach the management students. So these are the things we have to teach, not the entire book. देखिए ये बात तो आपको ठीक है. अगर मॉडर्न मैनेजमेंट के
हिसाब से अगर हम देखें जो प्रेटो प्रिंसिपल है तो वो कहीं ना कहीं मुझे रिलेवेंट लगता है कि 80% क्या है, तो 80% तो उसमें स्ट्रेंथ है, 20% इस तरह की चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है, स्टिल कुछ लोग दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, और वो है, वो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज आई एम अ ग्रेट एडमायरर एंड द एडवोकेट ऑफ द रामायणा। पर ये सब चीजें हैं, डोल पशु, ये जो बातें करते Don't you think, Dr. Gupta, that it means that now someone should take a lead with a proper research, make a condensed book for the management, taking all the good things which are required from Ramayana and put it in that book, which can be used as a textbook in India as well as abroad? वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैंने एक आई हैव रिटन आर्टिकल, लेकिन वो बुक के फॉर्म में अगर आ जाए, लेकिन लॉट ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं किया है, और एक बहुत ही डिफरेंट एरिया है और जिस पे हमें काम करना ही चाहिए, है ना। और क्योंकि इतना लिटरेचर इसमें है, इतना लिटरेचर है, तो यू नीड लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू। One more thing, which is referring to Raghuvansham of Kalidas, where Ramayana is extended to Lava Kush. It is written that Ram divided the kingdom equally between Lava and Kush. Successful companies are the one who has great development plans for their top performers, just like the succession plan for the kingdom. Essentially, a good leader will always choose to groom potential managers and employees to ensure long-term retention. Your comments. And also, you have to add one more word that is called nepotism. Now what you want to say? अब ये देखिए, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेशन प्लानिंग, तो इट वाज गुड, नथिंग रॉन्ग कहने का, भी पहले से फोरसीन कर लिया उन्होंने इस चीज को, लव और कुश को कहने का, तो वो इट वाज हिज डिसीजन, ठीक है, इसमें तो क्या है, ठीक है, करते भी हैं, है ना। सक्सेशन प्लानिंग क्या है, nepotism, can you explain more why you say nepotism? Sorry? Can you explain more about nepotism? Why only to Lava and Kush? Why not to others who are very much loyal to him, who has proved when the fight was on, and who has done so many good works? So the corporate leaders will feel that the CEO of the company's son or the daughter should be the next CEO. कह सकते हैं सर आप। If we are seeing in our politics also, I do not want to go for that. I don't want to be biased. I have to talk only positive and positive. तो इसलिए I have to accept few things. You can call it, it can be perceived. And I am not here to defend everything. Whatever I know, I will just share. But now, it can be perceived. Now we come to Ravana. You mentioned Ravana. Ravana was very knowledgeable person as per the Ramayana. Very, very knowledgeable person. Very religious person, very devoted person. Yes. Only one weakness, yes, but with a very high character. He has not even touched Sita ji while she was there. What inference we can give to the management students about the Ravana character? Yeah, please. We are all bundle of strength and weaknesses, as we discuss in the management. The first day we discuss, I talk. Number 1, 2, if we go by this SWOT analysis of the Rama, her character को आप SWOT analysis कीजिएगा. What was his strength, weaknesses, opportunities and threat. पर यहाँ opportunity और threat की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ strength and weaknesses. मैं इसको HAS analysis कहता हूँ. होप क्या थी, ड्रीम, अपॉर्चुनिटीज क्या थी उसके पास. मैंने एक बुक लिखी है हैज एनालिसिस. एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है उसके पास, एंड स्ट्रेंथ क्या थी. तो हम पहले स्ट्रेंथ की बात, विच यू हैव मेंशन्ड वेरी फेयरली. ही वाज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, वेरी पावरफुल. क्यों भक्त थे, इतना बड़ा भक्त था, तो शिव जी वाज
personally highly impressed. But what was his problem? ये थॉमस हैरिस की एक बुक है, आई एम ओके यू आर ओके, क्योंकि आपने कहा है कि मॉडर्न मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो इसलिए मैं उनका मेंशन कर रहा हूँ। बाकी ऑल नहीं तो रामायण में ऑलरेडी ये सब चीजें हैं, उन्होंने कहीं से ड्रॉ किया है, उन्होंने भी पढ़ के किया है, रिसर्च करके किया है, थॉमस हैरिस ने लिखा है, कहीं से तो लिखा है ना, सोर्स ऑफ लर्निंग क्या रही है। तो उसका जो प्रॉब्लम था कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, एरोगेंसी, dictatorship, humiliating remarks, attacking on self-esteem of others. While if you look, जो उसका नायक दिखाया गया एक को खलनायक दिखाया गया, रामचंद्र was different. He was also knowledgeable, he was also powerful, but respecting all, not arrogancy. तो रामचंद्र जी को आप कहेंगे आई एम ओके, यू आर आल्सो ओके, आई रेस्पेक्ट यू आल्सो, आपकी इंटेंशन को भी रेस्पेक्ट करता हूं, छोटे से छोटे को भी करता हूं, गिलहरी को, जटायु को। लुक एट द कैरेक्टर ऑफ जटायु, व्हाट वाज द इंटेंशन, है ना। तो रावण का एक ही प्रॉब्लम रहा था कि भाई नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स, एरोगेंसी, आई एम द बेस्ट। इसलिए उसको फिर एक मैक्वेलिज्म पर्सनालिटी हम लोग पढ़ाते हैं एमबीए में, जब पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं। तो मैक्वेलिज्म पर्सनालिटी क्या है कि आई नीड टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट। इफ आई नीड अ प्रमोशन तो मैं कुछ भी यूज करूंगा, मीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, only the goal, I need a promotion, I want to be CEO, I want to be at the top. उसके लिए मुझे चाहे साइको फैंसी करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, छल कपट कुछ भी करना पड़े, तो गोल इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वही एक प्रॉब्लम उनके साथ रही है, रावण जी के साथ। तो वो जो है कि आई एम द बेस्ट सिंड्रोम से ग्रसित थे, दैट वाज। अदरवाइज दूसरी तरफ आप देखें, रामचंद्र जी कहते हैं कहने का नहीं, इवन द रेस्पेक्ट फॉर द अपोनेंट, whereas he was on deathbed, तो he asked लक्ष्मण जी, उनसे जाओ और उनसे कुछ एडवाइस लो, मंत्रा लो जीवन का। तो वो जाके सिर की तरफ खड़े होते हैं, इफ यू रिमेंबर। राम asked him, no, he is a very knowledgeable person, he is a man of great traits. तो उनके पैरों की तरफ जाके खड़ो, अगर किसी से आपको शिक्षा लेनी है तो पैरों की तरफ जाइए, हम्बलनेस, तभी आप यू आर रिसेप्टिव। नाउ टोटल वी हैव चेंज टॉट एंड टीचर रिलेशनशिप इन मॉडर्न इरा। तो तब वो जाके उसके खड़ा होता है, और तब इफ यू रिमेंबर कि वो रावण भी क्या वर्ड्स उसको बोलता है, तो कहने का इफ यू हैव समथिंग टू डू गुड डोंट पोस्टपोन, बट इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग हार्म, तो कभी भी उसको हार्म करना चाहिए, उसको कीप इट पोस्टपोन आल्सो। तो हम लोग कहते हैं जब जाते हैं वर्कशॉप में, एंगर मैनेजमेंट, बहुत बार हमें गुस्सा होता है, रिएक्शन करने का मन करता है, टिट फॉर टैट करने का मन करता है। टिट फॉर टैट क्योंकि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लव टू टॉक। अक्सर ये कि रिएक्शन, कुत्ते ने मेरे को काटा, मैं कुत्ते को काटूं, दैट इज द माइंडसेट व्हेन वी हैव। तो कहता है करने कई लोग बड़े सीईओ ये करते हैं कि उसका एक छाप देते हैं, कहने का कि यू आर टर्मिनेटेड, पर लेके नीचे आई अप्लाई इन माय ऑफिस। तो वो मैंने वही रावण के कैरेक्टर से सीखा। मैं कई बार आता है, बहुत गुस्सा आता है किसी सबऑर्डिनेट पे, बहुत गुस्सा आता है फैकल्टी पे, तो मैं एकदम उसका एक्सप्लेनेशन कॉल लेटर लिख देता हूँ, पर देता नहीं हूँ लेके, या मेल करके उसको सेव करके रख लेता हूँ, या अपने सीनियर्स पे आता है। तो दैट वाज ए ग्रेट। अभी क्या है कि उसने जो थॉमस हैरिस की अब किताब पढ़ेंगे, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तो वो एक इसकी प्रॉब्लम थी, छल कपट, मैक्वेलिज्म पर्सनालिटी। अदरवाइज तो एवरी कैरेक्टर जितना भी है, हम लोग ऐसे हैं। तो मैनेजमेंट का फिलॉसफी ये है
ह्यूमन रिसोर्स के फिलॉसफी यही है कि वी आर ऑल यूनिक, वी ऑल हैव टैलेंट्स, कहीं ना कहीं हम में ये सब चीजें हैं. So that was his problem, sir. तो अब जब आपने लक्ष्मण की बात की, लक्ष्मण was known with two things, his impeachable, मतलब जैसे कहते हैं ना कि he was having full faith and love with his brother, but his anger management was not there. Was a problem. So how you will explain to the students of the management when we are talking about Lakshman as a character in Ramayana? Again, अगर आप SWOT analysis करें उसके, तो as you mentioned already, बहुत सही आपने बताया है कि he was a man of lot of strength, undoubtedly powerful थे, obedient, a very loyal subordinate, very difficult to find out in the organization. लक्ष्मण जैसा भाई अगर किसी को मिल जाए, लक्ष्मण जैसा सबऑर्डिनेट किसी को मिल जाए तो उसकी तो जिंदगी. बट अगर आप देखें, टू बी ऑन लाइटर साइड, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन ब्रॉट बिकॉज ऑफ हिम ओनली. तो वीकनेस की अगर हम उसको करें, हर कैरेक्टर का आप SWOT एनालिसिस करके देखें, ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, मायोपिक एटीट्यूड. अगेन उसका जंप टू द कंक्लूजन. More, he was not able to understand the difference between reaction and responding. तो वो शायद अगर MBA के किताबें उस टाइम होती तो वो उसको पढ़ाने की जरूरत थी. Don't react, but yes, respond. तो वो एक प्रॉब्लम जो उसने की शॉर्ट टेम्पर्ड. अरे भाई ठीक है, आज के युग में अगर कोई लाल साहब के पास आता है, कहता है कि सर आई वांट टू मैरी यू, बड़े स्मार्ट लगते हैं, आपकी कैप, आपकी टाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो व्हाट वी विल डू, वी कैन सिंपली से, कह देगा बहन जी माफ करो, आई एम मैरिड ऑलरेडी, है, या फिर कुछ और, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे लाल साहब मैनेज करेंगे इस प्रॉब्लम को. बट वो नाक काट देना, तो वो हैज ब्रॉट लॉट ऑफ ट्रबल. फिर उसके बाद कहना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और पहले ही तीर में, भैया वो तो हनुमान जी थे वहां, तो सब चीजें संभल गई. ना हो तो हनुमान जी, then you need a friend like Hanuman also in every organization who can be, मतलब उसको क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे नो ये हनुमान कैन ओनली डू क्राइसिस मैनेजमेंट वाला आदमी है. इसकी बहुत एस्पायरेशन भी नहीं है कि भाई CEO मेरे को ही बनाना, पर क्राइसिस मैनेजमेंट में है तो कि हनुमान, कहते हैं आज के लिए मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं कि तो हनुमान जी है, मतलब ही कैन, संकट मोचन, नॉट हनुमान जी, संकट मोचन. हनुमान जी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी ले लेते हैं, लेकिन संकट मोचन है. कोई भी क्राइसिस की बात आएगी तो वो ही उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. भरत मिलाप के टाइम पे देखिएगा, जब भरत, वाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्यों कहा उनको बैलेंस पर्सनालिटी रामचंद्र जी को, कि जब वो भरत मिलने के लिए आया, कहने का भैया युद्ध के लिए तैयार हो जाओ. would love to speak more in Hindi also because रामायणा को हिंदी और संस्कृत में जब तक नहीं करें तो जस्टिफाइड नहीं लगता है. तो कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कहने आई नो भरत इज अ मैन ऑफ जेलसी, नेगेटिव इमोशंस, तो लड़ने के लिए आ रहा है. उसने कहा wait, cool, calm. Ramchandra ji was not disturbed at all, and he was confident. Ramchandra ji too much. कहना I know Bharat very well. अब जिसके साथ आप रह रहे हैं, if you are not able to make a difference, if you are not able to find out the strength and weaknesses of a person, तो you कैसे किसको कहेंगे आप? Can you call him a good HR manager? आपको पता ही नहीं है, आप तो बस ऐसी किताब पढ़ के डिग्री लेके आ गए. You may be you may have a good IQ, but EQ is 0. तो अभी तो गोलमैन जो कहता है, डेनियल गोलमैन, कहने का नहीं यार, टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ एंड करियर 80% आपका EQ होना चाहिए. लोगों में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या आपके अंदर वो स्किल्स है. तो रामचंद्र जी हैड गॉट दैट स्किल्स एंड दैट वाज हिज टैलेंट मैनेजमेंट. टैलेंट को कैसे हंट किया जंगल के अंदर. तो उसने कहा कि नहीं वेट, तो वो मायोपिक एटीट्यूड नहीं है. व्हाट वी डू इन द ऑर्गेनाइजेशंस,
हम लोग जो काम करते हैं ज्यादातर 80% करेक्टर हमारा मंत्रा वाला हो गया, धोबी कम्युनिकेशन हुआ, अरे उसने ऐसा ऐसा क्या, विस्पर कम्युनिकेशन, कुछ का कुछ, और बहुत जबरदस्त इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अंदर लॉकआउट हो जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, जबरदस्ती किसी को निकाल दिया जाता है, फिर रिग्रेट करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वो सारा का सारा दैट affects your mental health also. Now you have taken the name of Bharat. What is your assessment as far as Bharat is concerned? What are his SWOT analysis, strength or weaknesses, if we will take these two, for the management students? Bharat was again very devoted, lot of respect for his brother, बॉस के प्रति एक सम्मान था, और उसने भी कहा कि नहीं 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 अच्छा ठीक है ना। अगर आप देखिएगा सक्सेशन प्लानिंग के जब आपकी, इफ somebody has given you the power, कहने अच्छा चलो ठीक है, but I will follow your principles, मैं तो काम कर रहा हूं। हम क्या बन जाते हैं कि हम एकदम कोई पावर हमें मिली नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आपने, अच्छा एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो ऐसी कोल्ड था, वो बाहर घूमने निकले, तो घूमने निकले, फोक था, तो एक आदमी उससे टकरा गया, तो ऐसा आदमी टकराया, कहने है कि क्या को तुम कौन हो, तो उसने डिडंट रिप्लाई, प्रेसिडेंट ने, तो कहने का इधर कौन रहता है इस घर के अंदर, कहने का इसके अंदर कोई रहता नहीं है, इसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। हम पे तो जरा सी पावर मिली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो मैं अपने को खुदा मान लेता हूँ, मालिक मान लेता हूँ। तो भरत ने क्या किया, कहना नो 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 नो, मालिक और ऑनर वही है, पॉलिसी उनकी चलेगी, मैं आई हैव बीन गिवन दिस चार्ज, आई विल फॉलो रिलीजियसली, आई विल फॉलो। ही वाज वेरी ओबीडिएंट, वेरी, राम के प्रति श्रद्धा, राम को समझने का एक ज्ञान था उसमें कि राम क्या है, राम क्या है। तो कहते हैं ना, जब वो भरत कहते हैं कि भी, और कितना एम्पैथी की सीखने वाली चीज है, तो वो भरत से सीखने की चीज है, कितना एम्पैथेटिक एटीट्यूड था उनका। तो कहते हैं, कहने के भाई कि हे पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, कहने के हे पृथ्वी, तुम जो है थोड़ा नमी पैदा करना, सॉफ्ट बन जाना जब रामचंद्र जी आए। तो कहने क्यों, योर ब्रदर इज सो सॉफ्ट, कहने नो 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 नो, ही इज नॉट सो सॉफ्ट, लेकिन वो जब आएंगे तो उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो। नहीं, उसने, आई एम सॉरी, उन्होंने कहा कि आर यू सो सॉफ्ट, कहने नो नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर माई सेल्फ, बट व्हेन माई ब्रदर विल बी बैक, और जब वो निकलेंगे तो उनको पैरों में परेशानी ना हो। तो सो एम्पैथी, सो, ये तो कहीं मिलना सर बड़ा मुश्किल काम है। हमें तो लगता है ये सब आदर्श पुरुष थे, आइडल लोग थे। अब आपने आइडियल की बात करी, तो एक करेक्टर है उर्मिला का, जिसपे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी लिखा, और उन्होंने भी बहुत लिखा है, शायद मैथिली शरण गुप्त जी ने, किसने और लिखा है। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके बारे में आप मैनेजमेंट में जब बताएंगे कि लक्ष्मण's वाइफ के बारे में बहुत कम हालांकि जिक्र है उसमें, लेकिन जो भी है, शी सफर्ड द मोस्ट, तब क्या एक लेसन हम लेंगे उससे? Again, I can say only good example of the sacrifice. मैनेजमेंट में तो बस यही है कि वेट एंड सेक्रीफाइस। तो मेरे को उर्मिला के कैरेक्टर, उर्मिला को वी कैन अप्रिशिएट, बट नॉट मैनेजमेंट में मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ समझ पाता हूँ उनका, है ना। गुड लेडी, बैलेंस, सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस को आप अगर पॉजिटिव वे में लें तो, बट मैनेजमेंट में शायद ये चीजों का बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। ओके, व्हाट आर सम डेंजरस लेसन्स इट कैन टीच टू एग्जीक्यूटिव्स, द डेंजरस लेसन्स व्हिच रामायण टीचेस?
Dangerous lessons मैंने I have already shared, but still if you want कि देखिए we need to be very careful about the character like mantra. वो आपने ऑलरेडी कि we credulous personality जब हम बन जाते हैं, when we jump to the conclusion, छोटा सा डेटा लिया नहीं और then we make a dangerous lesson की रिएक्शन नहीं करना, आपको प्रोएक्टिव बनना है, एरोगेंसी से बचना है, आई एम द बेस्ट सिंड्रोम से आपको बचना है, मैकोलिज्म पर्सनालिटी से बचना है कि नहीं आई वांट एवरीथिंग, आई वांट कुछ भी हो, कैसे भी हो, छल हो, कपट हो। तो ये बहुत बड़े लेसन्स हैं। दूसरा जब हम कहते हैं कि डेंजरस लेसन्स, इफ आई पुट इन अ वे, जब हम बात करते हैं कि भी राम राज्य की बात करते हैं, व्हाट इज राम राज्य। अभी देखिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी सोसाइटी को। अगर कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं राम को इसलिए कहने के वो तो माध्यम थे, उनके माध्यम से उनको क्या करना था कि ये जो राक्षस थे वो खत्म कराने थे रामचंद्र जी के थ्रू। लेसन्स टू बी लर्न कि जब हम रावण को दफनाते हैं तो रावण को जो who was a symbol of so many negative emotions, तो अपने अंदर के एक स्वाध्याय करें, एक अपनी स्वेट एनालिसिस करें, तो वो चीजों को हमें अपनी खत्म करना पड़ेगा। जेलेसी, दूसरे की चीज पे अपना अधिकार दिखा देना, ह्यूमिलेटिंग, वो सब चीजों को डेंजरस लेसन्स की आप बात करें तो लेसन्स तो नहीं हो सकते हैं, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम आल्सो कि कहाँ कहाँ क्या क्या। ये आप दोबारा से हमें इसको, आपने एक अच्छा इनपुट दिया मेरे को कि सोचना पड़ेगा जो तुलसीदास ने मेंशन किया अपनी रामायणा में, है ना, कि भैया ढोल पशु शूद्र और नारी ताड़न के अधिकारी, ऐसा क्यों बोला गया था, क्या हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। स्टेम लेडीज की रेस्पेक्ट भी काफी थी, है ना। तो सीता वाज, आई मीन, तो सीता को ही पूरे दिल में बसा के काम करते थे हर चीज को, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो सब चीजें थी। तो सर यही बस सीखने को है कि भाई हमें जब पावर मिल जाती है तो हम पावर का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर, और पावर चाहिए क्यों। पावर से रावण ने क्या क्रिएट किया, उसने फियर, सब लोग पूरी प्रजा डरते थे। साइकोलॉजी में हम बताते हैं पर्सनालिटी इज व्हाट, मास्क, तो ग्रीक वर्ड है मास्किंग। तो वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट अभी भी रामलीला में दिखाते हैं ना, तो वो कैसे राक्षस की प्रवृत्ति वाले लोग दिखाते हैं। रामचंद्र जी एकदम कूल, एकदम कहते हैं कि राम जैसा लला, राम जैसा भाई। तो जब पावर को हमने, पावर का डिस्प्ले हनुमान जी ने कैसे किया, रामचंद्र जी ने, he was more powerful than the रावण। बट व्हाट वाज इज, सब उनके पास बैठना चाहते थे, उनको प्यार करते थे, है ना। और पावर हमने क्या करा, आज की जो पॉलिटिशियन से सीख लिया है, आज के ब्यूरोक्रेट से अगर हमने सीख लिया है कि नहीं, इफ यू वांट टू डू सम हार्म फॉर समवन, तब ये इसका। Now, in management, believe in the ability of subordinates to achieve an aim and inspire them to do so is which you people teach to your students. Now, please correlate with Ramayana. Sorry, can you repeat your questions again? Believe in the ability of your subordinates to achieve an aim and inspire them to do so. How we can correlate with Ramayana? Great, sir. Very good questions you have asked. देखिए, if I talk about the modern science, modern management, तो एक concept हम लोग पढ़ाते हैं जोहारी window, which I have mentioned earlier also. तो उसका ये जो fourth part होती है window की, that is the area of unknown. I don't know and others also do not know. तो मैं इसको बहुत टेक्निकली डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है, दे कैन कोरिलेट, दे कैन अंडरस्टैंड।
then हमें जो कहता है कि modern psychology भी कि we all have lot of potential, but we are not able to recognize them, है ना. अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं सबसे ज्यादा यूज किया था उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का, दिमाग का, and that was, I don't know what was their method, scientific method, कि 7 और 8% कुछ ऐसा बताते हैं. आम आदमी कितना यूज करता है? When there was a time of crisis, तो क्राइसिस में क्रिएटिविटी आती है, क्राइसिस में आपको you learn about yourself also, है ना. हमें नहीं पता चलता हमें कितनी पावर थी. तो जैन उसके बात हुई कहने का कि भाई who can bring this संजीवनी क्राइसिस तब था. तो then जावंत, तो we need good manager, good life coach. एंड अभी मैनेजमेंट का जो आपने रोल बताए थे लाल साहब स्टार्टिंग में, अभी एक रोल हो गया है बड़ा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग एंड कोचिंग हैज बिकम आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए मैनेजर्स नाउअडेज. तो कहता है कि नहीं कि भाई यू कैन फ्लाई, कैन आई फ्लाई. तो ही यूज द कंसेप्ट ऑफ द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पिग्मलियन इफेक्ट. यू कैन फ्लाई, कैन आई फ्लाई, कैन आई फ्लाई. तो व्हेन यू आर इन अ क्लासरूम, when you enhance the self-esteem of someone, you can find different results. Delegation, empowerment, motivation, life coach का very good example is Ramayana. तो Hanuman was told, you can fly. जामवंत ने बताया, can I fly sir? फिर उन्होंने दिखाया. तो if we can use ये सारा का सारा जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया है कि पिग्मलियन इफेक्ट. एंड देन उसके बाद आप देखिए इंटेंशन, व्हाई रामचंद्र जी वाज डिफरेंट. कहने का गिलहरी जब वो बांध बन रहा था तो एक गिलहरी, इफ यू रिमेम्बर दैट एपिसोड रामायण में है उसका उल्लेख भी, तो वो आती थी अपना बालू से लिपट के और वहां अपना थोड़ा सा बालू छोड़ के आ जाती थी. तो बंदर was quite annoyed. They asked, what are you doing? What are you doing? She didn't reply. तो फिर जब बहुत इरिटेशन हो गया तो पूछा, तो उसने कहा कि भाई I know रामचंद्र जी is trying to create a bridge here. So I'm just trying whatever I can do. तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि अपने पास से थोड़ा सा रेत लाके डाल देती हूँ. रामचंद्र जी was there. He listened. And तब बताते हैं, I don't know कितना ठीक है क्या ठीक नहीं है, बट लेकिन एक मैसेज तो आता है कहने का. तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा. तो वो जो गिलहरी के ऊपर अभी जो उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं कि वो he was blessed. She was blessed. उसमें बताऊंगा कि मैंने कुछ देखे थे यूएस में, वहां की गिलहरी पे वो निशान नजर नहीं आया मुझे. आई डोंट नो व्हाई. लाइटर वे. नाउ थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, यू हैव गिवन ऑल द रिप्लाईज, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चंस, स्ट्रेट रिप्लाईज. व्हाट नाउ, to summarize today's program, what is your message to the students, to the youth of management, and what lesson they should take from Ramayana in 1 minute time? What you want to say? एक करेक्टर को हम थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर नहीं पाए, उसको हमने एस्टिमेट कर दिया. दैट वाज जटायु. यस. जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में कि बहुत सारा हमारे चारों तरफ अभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज सो एक्टिव बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर. तो व्हाट कैन आई डू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द जटायु. नेवर व्हाटएवर इज योर पोजीशन, अधर्म का साथ नहीं देना है. अधर्म का साथ नहीं देना. मैं ये नहीं कहता हूं कि यू कैन सेक्रीफाइस योर लाइफ, वो तो एक सिंबल था, लेकिन उसने कहा नो, गलत को गलत कहना ही सीखना हमें होगा. फिर आपका जो दूसरा लेसन है वो गिलहरी से कि इंटेंशन क्या है. when we see, कहते हैं ना, this society is bad because of the inaction of the good people, है ना. फिर आप respect for everyone, जो ये अभी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की हम बात करते हैं, IBM, मोटरोला, तो उसमें क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, जो सबरी का बताया था, और वो लिखा उस टाइम कैसे गया कि जो वो बेर देती थी, what I need to give to the customer, बेस्ट बेर को मुझे आगे देना है. जब when you are doing MBA, वो कस्टमर इज माय गॉड, क्वालिटी चेक.
तो बेस्ट में क्या कर सकता हूँ, जब when we have a questions what can I do, तो तब हमें जटायु जैसे लोगों को याद करना होगा, जटायु जैसे रानी को, लहरी को याद करना होगा, रामचंद्र जी के बारे में we have talked a lot, क्या बढ़िया लेसन्स EQ के हम लोग उनसे सीख सकते हैं. एंड I would like to repeat again and again, जो गोलमैन भी इस बात को कहता है, डेनियल गोलमैन की there's a very good book, मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़िएगा, कि what are the qualities of a good leader or of a good man. वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं, cool, calm, no arrogancy, I am okay, you are okay, intention को समझना, respect, listen the unheard also, delegate करना, empower करना, talent hunting करना, best resources कैसे उन्होंने बंदर को यूज किया, है ना, कहाँ उसका यूज किया, कभी कंप्लेंट नहीं करना, कभी रिग्रेट नहीं करना, गलती से सीख लेना, वो सारा का सारा तो Okay, thank you very much, Dr. Gupta. So viewers, we have seen today how Dr. Gupta has explained the importance of the Ramayana and the lessons one can take from Ramayana, which are very much useful for the management. And being a director of a management institution, he knows what are the what they are teaching today in the management and what already has been written in Ramayana. The only thing in our country or in our religion is that we consider Ramayana as a religious book. No doubt about it, no problem in that. But we must try to take the best of the Ramayana things to teach the future generation so that they will understand Ramayana. Don't keep it, make it like a religious book only so that nobody will touch it. It will be put in the puja's place. But we have to read it. And to that, I am sure the government of India and few scholars like Dr. Gupta will do the research, make something which are useful for the management, those things which are almost 90% or 95% or 99% of Ramayana, and implement it. And as Dr. Gupta says, that if anybody will try to implement even in his her own life, then the life will be very, very beautiful. So thank you very much. Today's program has been live telecasted by V4 News, V4 Stream, Karu News, Bharat Post News, Malnadu TV India, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, as well as was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor to bring to you everyday new topic in Media Conference with Lal Goel at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is marriage, mandatory or optional. And our panelists are Dr. Rajiv Anand, Senior Psychiatrist and Marriage Counselor, Mumbai; Dr. Sunita Banerjee, Anti-Aging and Family Physician, Mumbai; Miss Samin Dara Sawant, Psychologist and Therapist, Mumbai; and Mr. Kisale Vora, renowned artist, Mumbai. So please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Thank you very much, Dr. Naveen Gupta, for joining and giving, although we know that today's topic is a very, very sensitive topic, but as you know that we have to ask straight questions just to drive out the best. And you have given all the answers, not only straight, but you have given the explanation in such a way that I'm sure not only the youth or the students, but even the seniors got it very clear message that Ramayana is a epic or a book which one should read it in a different perspective so that they can apply in their own life. Thank you very much. And thank you all the viewers for watching our show. I'm sure today's show is very, very enlightening. Thank you very much.